Good afternoon, everyone. A very warm and hearty welcome to each one of you gathered here, and also those who are connected with us virtually. I understand quite a few journalists are already on the move for election coverage, so we have put this press conference in a hybrid mode. We have shared that link. Hopefully, a whole lot of others are also joined in, and we would be able to take questions from them if required. This is a press conference that IMD has been having twice a year, the periodicity, and that's how we would go ahead, keeping this focus on long-range forecast of southwest monsoon. I welcome Dr. M. Ravichandran, Secretary, Ministry of Earth Sciences, and Dr. M. Mahapatra, DG IMD, to this press conference. I would request Dr. M. Ravichandran to address this gathering, and thereafter we would be taking questions also. Sir. Thank you very much, and very good afternoon to all of you, and thank you for joining both in person as well as some people I understand that they are in online. So this is basically a long-range forecast, which is seasonal forecast for the year 2024 southwest monsoon. What is the seasonal outlook? That's the main thing. First forecast we are providing in this. The 2020-24 southwest monsoon seasonal, that means June to September, rainfall over the country as a whole is most likely to be above normal and higher. Above normal and higher. And quantitatively, it is around likely to be about 106% of long period average. The long period average is more than 104 to 110 percentage. And this, as you all know, that the long period average total annual rainfall is average about 87 centimeter. So currently, this basically majority of the signal, that means whatever the signal from Pacific or Indian Ocean or in the Eurasian snow cover, all almost favorable conditions. So hence the total rainfall is likely to be above normal. As far as the spatial distribution is concerned, the country as a whole overspread everywhere. Rainfall is most likely to over most parts of the country, except some areas over north in the Kashmir region and the east and northeastern parts of the country, where below normal rainfall is likely to occur. Some of the area we are not able to exactly find out the signal because noise is more than signal. So some of the things maybe in presentation you will get a clarity where it is a higher rainfall and where it is below normal. As far as the favorable condition, you all know that currently the moderate El Nino conditions are prevailing over the equatorial Pacific region, and the latest our monsoon forecast model says that forecast indicates that El Nino conditions are likely to weaken further to neutral ENSO conditions during early part of the monsoon season, and weak La Nina conditions are likely to be developed further subsequently. Also in the Indian Ocean dipole conditions at present over the Indian Ocean, it is the conditions are present over the Indian Ocean, and the latest climate model forecast indicates that positive IOD conditions are likely to develop during the later part of the southwest monsoon season. And the other signal which is important is the northern hemisphere snow cover extend during the last 3 months, January to March, below normal. It was below normal, hence it is inversely proportional, so it will likely to give a better monsoon rainfall. So most of the conditions statistically it is a favorable condition, and also you know that this year, maybe the last few years, we are able to provide this forecast not only from statistical but also dynamical forecast, so that we are able to give the spatial distribution of the rainfall also the over season. So this is in general, and maybe if you want to any specific, we can have a question answer later. Before that, I want to have a little more detailed presentation from Dr. Mahapatra, Director General IMD. So you can present, and then later on we can take up some of the questions from you. Thank you very much. Thank you, sir.
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फ्रेंड्स को हार्दिक स्वागत है, जो यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम 2026 का जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मानसून सीजन का है वो हम जारी कर रहे हैं। हमारे जो फोरकास्ट के हिसाब से पूरी देश में 2026 दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक होने का संभावना है। जब हम सामान्य बोलते हैं वो 96% से 104% तक होता है, और 104% से जब बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा होता है तब इसको एबव नॉर्मल यानी सामान्य से अधिक बोला जाता है। क्वांटिटेटिवली माने परिमाणात्मक ढंग से देखें, हमारे जो डायनेमिकल मॉडल्स है और जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है वो सभी का आधारित करते हुए मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंस और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आज ये जानकारी दे रहे हैं कि जो सीजनल मानसून रेनफॉल 2024 1 जून से 30 सितंबर के दौरान पूरे भारतवर्ष के एवरेज को कंसिडर किया जाए तो वो 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज होने का संभावना है। और ये मॉडल का जो एरर है वो ±5% है, यानी 106% ±5% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज इस साल जून से सितंबर के बीच में बारिश होने का संभावना है पूरे देश के लिए। और ये जो 106% है वो एबव नॉर्मल कैटेगरी में आता है। एबव नॉर्मल कैटेगरी का डेफिनेशन है 105 से 110% लॉन्ग पीरियड एवरेज की। 1971 से 2020 तक जो हमारे पास रेनफॉल डाटा है, इसको आधार करते हुए हम रिसेंट ईयर्स में नया लॉन्ग पीरियड एवरेज और नॉर्मल इंट्रोड्यूस किए हैं 2-3 साल पहले। और इस नॉर्मल के हिसाब से 1 जून से 30 सितंबर के बीच में टोटल रेनफॉल पूरे कंट्री का एवरेज होता है 87 सेंटीमीटर। सो आज के पूर्वानुमान यही है कि 87 सेंटीमीटर की 106% ±5% बारिश होने का संभावना है मानसून सीजन पे। हम सभी ज़्यादा तक चिंतित होते हैं कि जो लार्ज स्केल प्रोसेसेस होते हैं जैसे एलिनो या लानिना कंडीशंस, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस, और जैसे जो स्नो कवर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो इसको भारत मौसम विज्ञान विभाग कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है, और इसका भी जो प्रभाव है इसको हम हमारा पूर्वानुमान में भी कंसिडर किए हैं, और इसका भी पूर्वानुमान हम आज जारी कर रहे हैं। सो वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र पर एलिनो की स्थिति मॉडरेट ढंग से है, यानी मॉडरेट एलिनो कंडीशंस अभी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में प्रिवेल कर रहा है। और अनुमान यही है, पूर्वानुमान यही है कि ये मॉडरेट एलिनो कंडीशंस धीरे धीरे वीक हो रहा है, और बाई बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन एक न्यूट्रल कंडीशन में परिणत होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। न्यूट्रल एलिनो सदर्न ऑसिलेशन यानी एनसो कंडीशंस डेवलप होगा बाई बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन। और फिर जब मानसून सीजन में हम आगे बढ़ेंगे ड्यूरिंग लेटर हाफ यानी अगस्त सितंबर के आसपास हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि लानिना कंडीशंस डेवलप होगा। जैसे आप सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ द ईयर्स में जब एलिनो कंडीशंस होता है, लगभग 60% ईयर में एलिनो कंडीशंस पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मानसून रेनफॉल के ऊपर, और जब ये पॉजिटिव होता है तो इसका इम्पैक्ट अच्छा ही होता है। सो लानिना कंडीशंस अच्छे हैं। सभी हम इसको आपको डिटेल्स जानकारी देंगे हमारा प्रेजेंटेशंस में। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा से वेट करिए, हम हमारा प्रेजेंटेशन शुरू करें। कैन यू प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन? हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट डिफरेंट चरण में जारी करते हैं। जो फर्स्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मानसून का इशू होता है
अप्रैल 15 के आसपास इशू होता है। इसमें हम ऑल इंडिया एवरेज रेनफॉल कितना होगा इसका जानकारी देते हैं और स्पेशल पैटर्न कैसे रहेगा पूरी कंट्री में इसका जानकारी देते हैं। इसको फॉलो करते हुए मैं लास्ट वीक में हम सेकेंड स्टेज फोरकास्ट जारी करते हैं और ये फोरकास्ट में हम ऑल इंडिया का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, टोटल रेनफॉल कितना होगा इसके देते हैं। इसके साथ साथ जो 4 होमोजीनियस रीजन है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया का भी पूर्वानुमान जारी करते हैं। और इसके साथ साथ ईच महीने में सिंस 2021 बाई एंड ऑफ द मंथ ऑफ से मई हम जून का फोरकास्ट जारी करेंगे, जून एंड में जुलाई का फोरकास्ट जारी करेंगे, जुलाई एंड में अगस्त का और अगस्त एंड में सितंबर का फोरकास्ट जारी करेंगे। इसके साथ साथ जो सेकेंड हाफ में जो बारिश होता है अगस्त सितंबर, इसको दोनों को मिलाकर जुलाई एंड में भी इसका जानकारी देंगे। और मानसून कब भारतवर्ष में प्रवेश करेगा, यानी केरल में कब मानसून ऑनसेट होगा, इसका भी पूर्वानुमान हम जारी करते हैं मई महीना में, लगभग मिडिल ऑफ मई में हम इसका पूर्वानुमान देंगे। इसके साथ साथ कंटिन्यूसली जैसे हम बताएं कि एलिनो, लानिना या इंडियन ओशन डाइपोल का पूर्वानुमान हम ईच मंथ जारी कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी का जो एलिनो कंडीशंस आप जो देख रहे हैं, यहाँ जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है वो एलिनो कंडीशन से, ब्लू कलर को जानकारी होगा जैसे कि एलिनो कंडीशंस धीरे धीरे ब्लू कलर जो है वो डोमिनेट करने लग रहा है। अब बाय द बिगनिंग ऑफ जून जैसे चला जाएगा और न्यूट्रल कंडीशंस डेवलप होगा और हम और आगे बढ़ेंगे तो अगस्त सितंबर में लानिना कंडीशंस डेवलप होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि बहुत सारे मॉडल्स का एनसेम्बल है, वो भी ये जो फोरकास्ट हमने आपको बताया इसके साथ सहमत है। नेक्स्ट प्लीज। सो हमने एक स्टडी किए हैं कि पास्ट 1951 से शुरू करके 2023 तक जितना सालों हैं उस साल में कौन सा ईयर लानिना कंडीशंस रहा, और इसमें देखा गया कि 22 ईयर्स रहा ऐसे लानिना ईयर्स। तो ये लानिना ईयर्स में मोस्ट ऑफ द ईयर्स साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल वाज नॉर्मल और एबो नॉर्मल और एक्सेस, एक्सेप्ट 1974 and 2000 when it was below normal. So अभी फिर एक हम एनालिसिस किए हैं कि ये जो डाटा है 1951 to 2023 ड्यूरिंग द लानिना प्रोसीडेड बाय एलिनो, जैसे इस साल है एलिनो जा रहे हैं एंड लानिना आ रहे हैं, ऐसे ही कितना साल है हमने देखा कि देयर आर 9 years ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1951 to 2023. In these 9 years Southwest monsoon seasonal rainfall was above normal in 2 years, excess in 5 years, and on the positive side of the normal on 2 years. That means in such years when the La Nina is preceded by El Nino conditions in the monsoon season, every year we have got rainfall on the positive side of the normal. And there are 9 such years. All these years for the seasonal rainfall, JJAS, that is written, is shown in red color. So those red colors, please don't refer to individual months. The seasonal rainfall, those 9 years are shown in red color, and it is a good news, therefore, considering the forecast for La Nina conditions and neutral conditions during June to September, we can expect a good monsoon rainfall activity over the country. Next, please. So latest Indian Ocean dipole, जो कि काउंटर पार्ट है एल निनो सदर्न ऑसिलेशन का इंडियन ओशन पे, इसका आप जिक्र करें तो एट प्रेजेंट we have the neutral Indian Ocean dipole conditions, and forecast says that it will become the positive Indian Ocean dipole during monsoon season, maybe in the latter half of the monsoon season. This positive Indian Ocean dipole is good for Indian summer monsoon, therefore we can expect good rainfall because of the positive Indian Ocean dipole. Next, please. So on the right side, whatever you are looking at, they are the individual models forecast. Everybody is suggesting that it will become positive Indian Ocean dipole during monsoon season. Now, the third factor which also we considered last monsoon season while giving the long range forecast, that is the snow cover in the northern hemisphere, especially over Europe and Asian region. During this period from December to March, which we call as winter and spring season in the country, we are monitoring the snow cover area
over the northern hemisphere, especially Europe and Asia. What we find that the snow cover area over the northern hemisphere as well as the Eurasia was below normal during this period of December to March. And below normal snow cover favors the Indian monsoon rainfall during June to September. That means there is a negative relationship. Higher the snow cover, less is the rainfall. Less the snow cover, higher is the rainfall activity. On the right-hand side diagram, you are finding out the various years starting from 1960s. What you find that the rainfall has the inverse relationship with the snow cover. And this year, of course, it is how much negativity shown in the figure. Next, please. Now, forecast of rainfall during monsoon season 2024, as Secretary साहब has already informed you, अब मैं भी पहले से बता दिया था कि इस बार हम ये पूर्वानुमान दिए हैं कि सारे भारतवर्ष का जो एवरेज रेनफॉल है वो लगभग 106% प्लस माइनस 5% हो सकता है और ये एबो नॉर्मल कैटेगरी में आता है. एंड एबो नॉर्मल कैटेगरी का डेफिनेशन यही है कि इज मोर देन 104% अप टू 110%. नाउ हम भी एक कैटेगोरिकल फोरकास्ट जो इशू करते हैं, हम आपको बताया कि वो नॉर्मल कैटेगरी, हम इसको 5 कैटेगरी में एनालिसिस करते हैं, जैसे कि डेफिशिएंट, बिलो नॉर्मल, नॉर्मल, एबो नॉर्मल और एक्सेस. और रेनफॉल रेंज इसका होता है डेफिशिएंट जो हम बोलते हैं, जबकि रेनफॉल 90% से लेस होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज का. 90 to 96% होने से इसको बिलो नॉर्मल, 96 to 104% होने से इसको नॉर्मल, 104 से 110% होने से एबो नॉर्मल और मोर देन 110% होने से इसको हम एक्सेस रेनफॉल बोलते हैं. और इस बार का जो फोरकास्ट प्रोबेबिलिटी है, इसमें आप देखेंगे कि डेफिशिएंट रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% है, जबकि क्लाइमेटोलॉजिकली 16% होता है. सिमिलरली बिलो नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट है 8%, जबकि क्लाइमेटोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी होता है 17%. नॉर्मल 29% against climatological probability of 33%. Above normal forecast 31%, जबकि climatological probability है 16%. Excess rainfall का probability है 30%, जबकि climatological probability है 17%. So मैं इसको समरी करूं तो above normal और higher, जैसे सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे, होने का probability 61% है against the climatological probability of 33%. So इसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मानसून रेनफॉल इस साल अच्छा रहेगा और नॉर्मल से ज़्यादा होगा. नेक्स्ट प्लीज. सो अभी हम जो पूरी देश में कैसे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और कहाँ कैसे बारिश होगा इसका जानकारी देते हुए हम ये जो फिगर आपको दिखा रहे हैं, इसमें 3 तरीका का पूर्वानुमान जारी है. एक है कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल, जिसको हम येलो, ऑरेंज, रेड कलर में आपको दिखा रहे हैं. नॉर्मल रेनफॉल, जिसको हम ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं. और एबो नॉर्मल रेनफॉल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है. जैसे आप देखेंगे ये चित्र में, कंट्री का लगभग 80% ऑफ एरिया और 75% ऑफ एरिया आप देखेंगे कि ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है. यानी लगभग अधिकांश क्षेत्र में रेनफॉल एबोव नॉर्मल होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है. मगर आप एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की बात करें, कि हिमाचल और एडजनिंग एरिया से उत्तराखंड की बात करें, वहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है. सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, जैसे कि असम, ईस्टर्न मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और एडजनिंग एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ भी रेनफॉल बिलो नॉर्मल होने का प्रोबेबिलिटी है. ईस्टर्न इंडिया की बात करें, ईस्टर्न इंडिया की जो ओडिशा है, कि एडजनिंग एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ है, झारखंड के कुछ हिस्सा है, गंजटी वेस्ट बंगाल है, ये सभी एरिया में भी बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी का पूर्वानुमान किया गया है. मैं आपको यहाँ ये बोलते रखूँ कि आप क्लाइमेटोलॉजिकल पैटर्न देखें, जो साल में ऐसे लानिना कंडीशंस डेवलप होता है, इस साल में यूज वाले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सा में बिलो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है. नेक्स्ट प्लीज.
सभी हम समरी आपको बताते हैं कि कंट्री एज ए होल के लिए मानसून सीजन के दौरान रेनफॉल एबो नॉर्मल यानी 104% से ज़्यादा होने का संभावना है, और क्वांटिटेटिवली हमारा पूर्वानुमान है कि 106% लॉन्ग पीरियड एवरेज का रेनफॉल हो सकता है, और विथ मॉडल एरर ऑफ ±5%। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो 1971 से 2020 का आंकड़ा के ऊपर आधारित है, और ये लगभग 87 सेंटीमीटर है पूरा कंट्री के लिए। और अभी मॉडरेट एलिनो कंडीशन प्रिवेल कर रहा है। बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन में ये न्यूट्रल कंडीशन हो सकता है, और सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन पे ये लानिना कंडीशन, पहले वीक लानिना होगा, ऐसे शुरू होगा, सो लानिना कंडीशन डेवलप हो सकता है। और न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस अभी प्रिवेल कर रहा है इंडियन ओशन पे, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन पे, और ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल लेटर हाफ ऑफ मानसून सीजन में होने का संभावना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का स्नो कवर की बात करें, वो नॉर्मल से कम है, बिलो नॉर्मल स्नो कवर है, जो कि फेवरेबल है इंडियन मानसून रेनफॉल के लिए। सो ये सभी जानकारी के साथ मैं अभी और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सेकेंड स्टेज फोरकास्ट वो जारी होगा लास्ट वीक ऑफ मई 2024 में। धन्यवाद। Thank you for the detailed data provided. We could now move to taking some questions from media persons present here and virtually connected with us. I would request all of you to please confine your questions to scientific information presented here and get enlightened by the expertise present here. We could begin with here. Please. Eastern states, for example, Gangetic West Bengal, Bihar, Jharkhand, they're getting below normal rainfall. Is there a reason for this? मैं तो पहले आपको बता के रखूं कि हमारा जो आज पूर्वानुमान जारी हुआ है, इसमें जो एरिया आपने बताया वो एरिया में थोड़ी सा अंतर है। जैसे कि पास्ट 2 ईयर्स ने आपने सही बताया कि ईस्ट यूपी बिहार में बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी रिकॉर्ड किया गया है, और आज का जो पूर्वानुमान है इसमें ईस्ट यूपी बिहार के लिए नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल पूर्वानुमान किया गया है, और जबकि ओडिशा के लिए बिलो नॉर्मल रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी है। गंजरी वेस्ट बंगाल एक साल के लिए भी बिलो नॉर्मल रेनफॉल था, और इस बार आप देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ गंजरी वेस्ट बंगाल एबो नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्शन किया जा रहा है, और सदर्न पार्ट्स में बिलो नॉर्मल टू नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी प्रेडिक्शन हुआ है। और जो आप रीजन बोल रहे हैं, सो इंडियन मानसून एज सच एक लार्ज स्केल प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें लार्ज स्केल प्रोसेसेस जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे एलिनो, लानिना, आईओडी एट्सेट्रा, इसके अलावा जो रीजनल प्रोसेसेस है, रीजनल कंपोनेंट्स ऑफ मानसून है, उनके वेरिएशन पर डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ लोकली भी। तो इसलिए ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बोलने का कि रीजन क्या है, और ये R&D का विषय है। Can we take from the left here? एग्जैक्टली आप जब हमारा कैटेगरी के हिसाब से जाएंगे ना, लास्ट ईयर इट वाज 94.4%, सो 96 से 104 जो होता है इसको नॉर्मल बोलते हैं, और सो 94.4 इज काउंटेड एज बिलो नॉर्मल। Whatever हमारा फोरकास्ट था 96 ±4 एंड बिकेम 94.4, फोरकास्ट वाज करेक्ट, मगर कैटेगरी वाइज लास्ट ईयर इट वाज बिलो नॉर्मल। Number 24, please introduce yourself and your organization also. Good afternoon, I am Nivedita. My question is about the map that you showed, which had large blue parts and some parts of monsoon core zone as no data or no information about it. So the question is, you have a research test bed exactly for that, and it's started already, right? 2 years or so. So is that not? No, the research bed in Bhopal we just started. Okay, so that is nothing to do with what is called this forecast or anything. That is for understanding the process. But yes, the research test bed, it is we are installed many instruments, but still we need to augment much more. So that is going on parallelly. But in forecast, that is not connected with that.
54. Jacob Koshi from the Hindu. I'd like to understand what is the July, and in many years, I mean recent years, we are seeing that June, July is relatively weak. Follow and be also there this year, and June, July, if any estimate. I think this particular forecast we will not able to quantify exactly month-wise, because that will come in the next subsequent, in the May forecast we will be able to give month-wise. But this seasonal average, it is like that in the dynamical model. But we have not looked at each month what is the variability and other things. If you have anything specific, then maybe we can. That's right, what Secretary Saab told, that the forecast for month of June will be issued by the last week of May. Similarly for July in the month of June, by the last week of June. So, yeah. Yeah. So if you consider simply one factor, that is La Nina, yeah, we are expecting La Nina conditions in the second half of the monsoon season. Therefore, certainly the impact will be more in the second half. So you can expect more rainfall if you consider only La Nina. But as I told you, monsoon is affected by so many large-scale processes. But considering only La Nina impact, second half can be expected to have more rain compared to the first half. See, these three factors, El Nino, La Nina, or Indian Ocean dipole, snow cover, all these things, these are one of the contributors majorly. But there are many things which even we don't know. For example, that other question, why in Eastern India there is less rainfall? We don't know, because it is a dynamical process bring out. Still we need to understand various processes, what is happening, small processes, because it is a complexity of many variables. Number 4, you had a question? Sir, as we all know that India is going to... Can I please have your name? Yeah, Nikhil Ghanekar from the Indian Express. As we all know, India is going to vote in a couple of days from now, and I understand that this forecast is from the period from June to September, but there is a period of pre-monsoon showers that happen in some parts of the country, and considering that this time this is the longest election ever, can we expect in some parts of the country pre-monsoon showers which may probably affect some of the election phases? I know that IMD does not look at this aspect, but can you please dwell on the aspect of pre-monsoon showers? Yeah, this season from March to May is called as pre-monsoon season. And pre-monsoon season is characterized by 3 important weather systems. One is sometimes the tropical cyclones can develop. And usually it develops in the onset phase of monsoon, either in Arabian Sea or Bay of Bengal in the month of May most frequently, and April sometimes also. But as per our forecast, there is no cyclone in the April at present we are expecting. The second one is the thunderstorms. So we have thunderstorm activity, and it becomes maximum in the month of May over Northeast India, Eastern India, especially East UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal, and Odisha. And then of course, less intense, but also it occurs over the peninsular India. The third one is the heat wave. So we can expect heat wave in different parts. That we have given the forecast already. A number of actions have been taken by the government at the national level, at the state level also. And with respect to these elections, India Meteorological Department is providing all informations, including the climatological information and the forecast information, starting the seasonal forecast to weekly forecast, the monthly forecast, and day-to-day forecast to Election Commission at the state level, at the central level, and also it is going to all concerned agencies. Number 256 here. अभी इलेक्शन का टाइम है, तो निकाल के बाद भी, यानी चुनाव के निकाल के बाद भी कोड ऑफ कंडक्ट रहेगी कंटिन्यू. अभी बहुत सारे स्टेट में ओले गिर रहे हैं, बारिश भी बहुत सारी हो रही है, तो जो किसान लोग हैं उनको मदद नहीं दे सकती सरकार कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से. इसके लिए आईएमडी ने क्या अलग प्रावधान किया है क्या, कि किसानों को प्रॉपर मैसेज जाए वहाँ उनके पास की खेती के बारे में ऐसा कुछ, क्योंकि मदद नहीं उनको मिल रही. किसानों के पास हमारा जो मौसम का पूर्वानुमान है, उनको पहुंचाने के लिए हम मल्टीपल अप्रोच अनुसरण करते हैं. पहला होता है कि मास मीडिया थ्रू ऑल इंडिया रेडियो, टीवी एंड अदर प्राइवेट चैनल्स ऑल्सो हमारा मैसेज जाता है. डीडी किसान एक स्पेशल चैनल है जिसके जरिए भी मैसेज जाता है. दूसरा है कि हमारे पास एक मोबाइल ऐप डेवलप हुआ है जिसका नाम है मेघदूत. मेघदूत मोबाइल ऐप के जरिए जो लोग इसको डाउनलोड किए हैं उनके पास हमारे पूर्वानुमान जाते हैं.
तीसरा है कि जितना स्टेट मोबाइल ऐप है इसके साथ भी हमारा समझौता हुआ है, वो स्टेट मोबाइल ऐप में भी हमारा जानकारी जा रहे हैं। इसके साथ साथ चौथा ये है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ब्लॉक लेवल पे एक्टिव फार्मर्स के साथ, हमारा लक्ष्य यही है कि एटलीस्ट 5 फार्मर इस विलेज में हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लाएं, जैसे कि एक फार्मर पास पहुंच जाएंगे तो दूसरे लोगों को जानकारी मिल सकता है। इसके साथ साथ फार्मर्स अवेयरनेस कैंपेन भी किया जाता है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और स्टेट गवर्नमेंट और IMD मिलते हुए। सो ये सभी का जो जानकारी है ये सभी हम लोकल लैंग्वेज में देते हैं, जैसे कि लोकल फार्मर्स इसको समझ पाएँ। और ये जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं इसको हम क्रॉप वेदर दोनों इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारा इन्फॉर्मेशन जो वेदर फोरकास्ट जाता है इसके साथ साथ ICAR और अदर एजेंसीज मिलकर इम्पैक्ट क्या होगा वेदर के ऊपर इसका जानकारी भी देते हैं। ऑन डे टू डे बेसिस पर जैसे आपने बताया कि ओला गिरना, कि लाइटनिंग होना, कि कोई सीवियर वेदर होना, इसका जानकारी हम डे टू डे बेसिस पर हमारा पूर्वानुमान में जारी करते हैं और ये भी इशू होता है सभी फार्मर्स को इसी जरिए में। और इम्पैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के लिए सभी स्टेट, सेंटर, IMD मिलकर काम कर रहे हैं। We'll take the next question from 275 and then 56 here. आपने 8 जून का कुछ जिक्र किया, तो कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम 8 जून देयर विल बी मानसून, एंड स्पेसिफिकली माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द महाराष्ट्र कोस्ट, दैट महाराष्ट्र में और गुजरात कोस्ट पे हम कब मानसून एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात पे? बिकॉज 8 जून, फ्रॉम 8 जून यू सेड समथिंग, सो नहीं, मानसून ऑनसेट ओवर केरला के लिए हम फोरकास्ट जारी करेंगे अराउंड मिडल ऑफ मई। इसके बाद इसका एडवांस कैसे होगा, और हर दिन इसका जानकारी देंगे। अगले 7 दिन के अंदर मानसून का एडवांस कैसे हो सकता है। अभी से महाराष्ट्र में क्या कोई एरिया में कब मानसून आएगा इसका जानकारी हम नहीं दे रहे हैं। 56 here. I'm Vishnu Mohan from Times of India. In fact, my question is regarding the onset of monsoon. So I just want to understand, does La Nina also have any impact on the onset of monsoon? La Nina condition have any impact? Yeah, there are some kind of mixed behavior. इसलिए हम अभी ऐसे कुछ आपको टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पाऊंगा, मगर La Nina years stands for good monsoon rainfall years. So हम डिफरेंट ईयर्स का जानकारी लेंगे तो देखेंगे कि नॉर्मल डेट के आसपास La Nina years में मानसून ऑनसेट होता है। You had another question? Jayashree from Hindustan Times, sir. I just wanted to know about the current rainfall and weather activity over northwest India. Can this be considered pre-monsoon rainfall? And also, are we expecting more showers? So is the pre-monsoon period likely to be favorable for us? Yeah, pre-monsoon season, usually, as you told, we experience mostly thunderstorms. And thunderstorms predictability is not so high in terms of the lead period. So we go for 2 types of forecast in case of thunderstorm. One is identification of the potential zone. 5 days ahead, we identify the potential zone where we are expecting thunderstorms or lightning. As the day progresses, 2 days ahead, we provide orange and red color warnings. And on the day of occurrence, every 3 hours, we issue the nowcast. And that nowcast is very specific at the station level. And but 24-48 hours it goes at district level warning. So this process continues, and for this purpose also we utilize the common alert protocol developed by NDMA and SDMS and IMD. So we identify the areas for next 24 hours where we are expecting thunderstorm activities, or for next 3 hours we are expecting thunderstorm lightning activity, and that goes to the state governments, and through the system of common alert protocol it reaches the public. Difficult to forecast thunderstorm in long term. But if you look at the current system, when the thunderstorm is occurring with a large scale system like western disturbance, 5 days ahead we have told that Delhi will get rain on 13th and 14th, and that has happened. If it is simply thunderstorm activity occurring like Kal Baisakhi or Nor'wester in eastern India, then you cannot predict 5 days ahead. You have to be less. Another question to the right, and then I have a few questions from ग्लोबल online. वार्मिंग की वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। सरकार और
बहुत बड़ा ये सवाल भी है कि अभी क्रॉप का बहुत बड़ा नुकसान इसकी वजह से होता रहा है बार बार, तो सरकार और आपसे कोई तालमेल है कि इसके बारे में, और सरकार को आपने कोई सूचित किया है कि क्रॉप सीजन में कोई चेंज करना पड़ेगा, कि जिस तरह से बारिश होती है या बहुत बड़े गोवा देखे या जो समंदर के किनारे के स्टेट है, इसमें बार बार यही देखना पड़ा है कि कोकण में भी महाराष्ट्र में ऐसे देखने मिला था, तो इसमें कोई चेंजेस करने के लिए सरकार ने आपके पास कोई अप्रोच किया है या आपने सरकार को कुछ बोला है क्या क्रॉप सिस्टम में चेंज करने के लिए, कि बार बार अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता रहा है? इसका तो जानकारी विस्तृत रूप से शायद मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर देंगे, मगर आपको हम मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स साइंस की तरफ से, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हम क्या किए हैं इसका जानकारी देंगे। पहला है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे मानसून रेनफॉल के ऊपर। इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिसेंट 30 ईयर्स का एनालिसिस किए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल कैसे वेरिएशन हो रहा है। इसका पब्लिकेशन है, हम IMD वेबसाइट में इसको रखे हैं, आप इसको जानकारी दे सकते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ रेनफॉल बढ़ रहा है, कहाँ रेनफॉल कम हो रहा है। दूसरा ये है कि रेनफॉल के साथ साथ टेम्परेचर भी कैसे चेंज हो रहा है सभी इलाके में, इसका भी जानकारी हम तैयार किए हैं स्टेशन लेवल पर एंड ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंड स्टेट लेवल पर। और इसका इम्पैक्ट मानसून पर क्या है इसका भी जानकारी हम तैयार किए हैं, एंड रेनफॉल के साथ साथ मानसून ऑनसेट में क्या हो रहा है और मानसून विड्रॉल में क्या हो रहा है। जैसे आपने जिक्र किया, सेंट्रल इंडिया में मानसून आजकल लगभग एक हफ्ता लेट में आ रहा है, और पूरे कंट्री में जैसे पहले जुलाई 15 तक कवर कर रहा था, अभी जुलाई 6 तक कवर कर रहा है। दैट मीन अर्ली कवरेज हो रहा है राजस्थान और एडजॉइनिंग एरियाज में। सिमिलरली मानसून विड्रॉल की बात करें, मानसून विड्रॉल अभी लेट हो रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और बाय द टाइम पूरा कंट्री से विड्रॉ होता है वो डेट सेम है, और मानसून ऑनसेट केरल के पास भी डेट सेम है। ये जानकारी हम पब्लिश किए हैं और जानकारी भी सभी को हम हमारे वेबसाइट के माध्यम में देते रखे हैं। इसमें आप जो क्रॉपिंग पैटर्न है कि क्रॉप सीडलिंग है, इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन साइड। सर मैं अनिरुद्ध हूँ दैनिक भास्कर से। सर अभी 15 दिन पहले जब आपने अप्रैल का और पूरे गर्मी के सीजन का फोरकास्ट दिया तब बताया कि इस बार हीट वेव्स नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन अभी 15 दिन तक गुजरे हैं, उसमें सामान्य स्थिति लग रही है कुछ एक इलाकों को छोड़कर, मतलब तेलंगाना या आंध्रा को छोड़कर। तो क्या कुछ खास तरह का बदलाव हुआ है उस वजह से ऐसा हो रहा है, या कुछ एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? मैं तो पहले आपको ये बता के रखूं कि मैं थोड़े से करेक्शन करना चाहूँगा कि 1 तारीख से 7 तारीख तक टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई रहा एंटायर साउथ इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया में, और इसके साथ साथ स्पेशली 5 तारीख से 7 तारीख तक हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस देखने को मिला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गंजरी वेस्ट बंगाल, झारखंड और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ विदर्भ। इसके बाद 7 तारीख के बाद जैसे हमने पूर्वानुमान दिया था, 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी जैसे पास हो रहा है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ा है, इसके वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ है। मगर फिर मैं आपको बोल के रखूँ, पास्ट 2 डेज में ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एलोंग ईस्ट कोस्ट टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हमारा पूर्वानुमान है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा में फिर हीट वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है। नॉर्मली इन द मंथ ऑफ अप्रैल 3 दिन के लिए हीट वेव दिखाई देता है, ऑलरेडी 3 दिन का हीट वेव हो चुका है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 1-2 स्पेल हीट वेव आएगा ये महीना में। इसलिए हम जो पूर्वानुमान दिए हैं इसके ऊपर बिलीव करिए और इसके ऊपर सभी एक्शन होना चाहिए। टेम्पररीली रिलीफ हो सकता है, रिलीफ हुआ है, अच्छा है। अभी 21 तारीख 22 तारीख तक सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसे बारिश जारी रहेगा, और सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म की वजह से हीट वेव एक्सपेक्टेड नहीं है, मगर सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में हीट वेव डेवलप हो सकता है। I'll just read out the question. Any cyclonic activities in Bay of Bengal or? Yeah, अभी तो नहीं है। Question that I had Because online also. we are reaching into the peak season of that cyclone. Yeah, there is no seasonal forecast of the cyclonic activity, but if you ask for next 10 days, for example, हम कोई cyclonic activity expect नहीं कर रहे हैं। Before 10 days only we will be able to tell. Yes. There's another question on any correlation between hurricane season and cyclone season. Hurricane and cyclone are the same. It is called as hurricane in USA or
North Atlantic. It is called a cyclone in Indian Ocean. But season is different. So we have got two cyclone seasons. One is from April to June, another is from October to December. Whereas they have got only one season. Other ocean basins have got one season. I think one, the cyclone on the Gujarat coast, and the August temperature which dropped abnormally to the lowest level. Is there this kind of abnormal thing? Are you foreseeing during the monsoon season any kind of such event? Every year monsoon is unique, and you can expect transient disturbances. You cannot rule out low pressure systems, depressions, cyclones. So these are the part and parcel. But that cannot be predicted in long term in the seasonal forecast. That we go on monitoring and provide information in extended range, that is 15 days ahead, and following up every day we give forecast up to 7 days. thank you so much for all the detailed information. We'll close the press conference here. You're most welcome to partake snacks on the 4th floor.